कंपनी के बारे में बोला भी था। द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज अराउंड 1400 करोड़। आर ओ सी आर ओ ई आपको पता है कैसे देखना है। पी इसका 17 है। दिस कंपनी इज इनटू बी ओ पी पी फिल्म्स एंड दिस इज देयर 96 to 99% ऑफ द प्रोडक्शन इज डोमेस्टिक, थोड़ा सा एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ व्हाट दिस कंपनी इज डूइंग, फरवरी 2022 में द कंपनी एडेड अ सेकंड प्लांट ऑफ बी ओ पी पी फिल्म हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 30,000 टन्स पर एनम, making with the investment of 300 crores which was funded by long term loans and by internal accruals. This is the basic thing जो ये कंपनी कर रही है. Now what has actually happened over here, आप देखोगे from 2015 we have the data, the sales were more or less stagnant, 300 करोड़, 260 करोड़, 250 करोड़, 270 करोड़, और depreciation होने के बाद you see there were hardly any maintenance capex or improvements. In fact the company had a good amount of investments जो वो बढ़ते जा रहे थे. Now these investments could be subsidiaries, these investments could be quoted shares, these investments could be anything which we need to go and check in the reports and filings, right? So what actually is happening over here, अगर मैं asset turnover ratio निकालता हूँ तो 302 crores of my net sales divided by 90 crores of my asset turnover ratio which comes to a number. अगर आप चाहो तो एक्सेल से भी इसको निकाल सकते हो, which is very simple. Now if you see the asset turnover ratio, I'll just do this. The asset turnover ratio is 6 times, 3 times, 4 times, 6 times, 8 times, 9 times. Right? Now any company which has an asset turnover ratio of more than 5 is prone to disruption by competition entering into the business, right? ये चीज़ हम very well of discuss कर चुके हैं, इसके बारे में examples भी देख चुके हैं. Now this company has a good asset turnover ratio and नहीं recording मैंने किया हुआ, don't worry, recording is on. And my receivable days are around 30 days, 20 days, 40 days, which is a acceptable number. मैं मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल देखता हूँ यहाँ पर, तो कैश कन्वर्जन साइकिल माई कैश कन्वर्जन साइकिल, सी माई डेज पेबल आर 121 ओवर ईयर. अर्लियर दे वर ऑल 11 days 10 days, मतलब 2 महीने का मेरा, 1 महीना से 2 महीने का मेरा पेमेंट साइकिल है, राइट? Now this could be suddenly the payments have jumped from 11 days to 121 days. This could be out of stress, this could be out of some contracts or something. In this company, see what is happening now. 30 करोड़ का मेरा एसेट्स है जो 90 करोड़ से डेप्रिशिएट होता होता आ रहा है, एंड देयर वाज नो सिग्निफिकेंट अप मूव इन द सेल्स. नाउ सी व्हाट द कंपनी स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम 2020. ये लॉकडाउन था, लॉकडाउन का पीरियड था जहाँ पर ज़्यादा काम नहीं हुआ. 172 crores of my assets have been built over here and 250 crores of my assets have been built over here. The company is net cash free. अगर मैं 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखता हूँ सामने, 150 करोड़ का डेट देखता हूँ, विच इज़ हार्डली एनी थिंग. इफ़ आई गो एंड लुक एट द कैश इसके पास कुछ खास है नहीं. नो व्हाट आर दीज इन्वेस्टमेंट्स, वी नीड टू गो एंड लुक, राइट? If I am getting even 1 rupee buck value for these investments, which might be कोटेड स्टॉक एंड उसका वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है, विच वी कैन सी इन द डिटेल्स. लुक एट द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी. 1200-1500 करोड़ की मार्केट कैप में आपको 600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं, प्लस यू हैव अ कैपेक्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 times, राइट? एंड इफ माई एसेट टर्न्स आर 8 to 9 times and the company has taken 50% of loans and 50% from internal generations, which is very evident from the cash flows of the business कि ये क्या कर पा रहा है, and he is generating good amount of cash flow and 150 crores of assets इसने यहाँ परचेज किए हैं. what could be the future revenues of this business? Now ये सब चीज़ें आपको पता हैं. how do you structure your trades or alpha generation? suppose आपको 4%, 5%, 6% पोर्टफोलियो को allocate करना है. very smartly you can go and look at these two things, the top line figures of your yearly numbers and your quarterly numbers. अधिकतर आपको ये जो comparisons हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है, ईयर ऑन ईयर है, YOY सेल्स ग्रोथ. अगर मुझे जून 2019 से पहले जून 2018 का सेल्स ग्रोथ करना है तो स्क्रीनर में डेटा मिसिंग है, बट दिस थिंग इज़ देयर, राइट?
नो सडनली व्हाट विल हैपन, यू विल गेट 2 3 4 क्वार्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल सेल्स ग्रोथ, नेग्लिजिबल, आपको कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलेगा. दिस कुड बी अ वन ऑफ अगेन नेगेटिव ग्रोथ हो सकता है, आपका पिछला बेस बड़ा हो ये लॉकडाउन का, बट समवेयर डाउन द लाइन यू विल स्टार्ट सीइंग दीज काइंड ऑफ नंबर्स. कैपेक्स सेशन आप सबने अटेंड किया था, द रिवर्ट व्हेन द ROE रिवर्ट्स आफ्टर द कैपेक्स बीन डन, so the profits start coming to the business, right? Now look at the top line growth. अगर इस धंधे में ऑपरेटिंग लेवरेज होगा, विद द अमाउंट ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ माई बॉटम लाइन ग्रोथ विल इवन ग्रो मच ड्रास्टिकली फास्टर ओनली बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. नाउ आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट? सो anytime we see this capex coming over here, when do you get conviction to go and buy more amount of stock which you might sell say 50% 100% returns के बाद, and you might keep your core allocation जो आपको 2 साल 3 साल 4 साल के लिए रखना है, लेकिन कुछ ऐसा allocation जो आप सेम कंपनी के अंदर कर सकते हो, which you can sell maybe in 2 3 4 5 months down the line, which can give you some extra alpha generation in spite of going and hunting for trades. सो व्हेन द कंपनी स्टार्ट्स टू डू कैपेक्स, ROE रिवर्ट करेगा, वो एक्सेल शीट में हम देख चुके हैं, कैपेक्स सेशन में देख चुके हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. माई सेल्स विल पिक अप व्हेन दीज देयर आर 2 थिंग्स. वन, अ कंपनी विल डूइंग अ स्टैगर्ड कैपेक्स, थोड़ा कैपेक्स कर रही है. वन, अ कंपनी डूइंग अ लमसम कैपेक्स. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ अ स्टैगर्ड कैपेक्स ऑल्सो. नो, दिस इज पिकिंग अप, दिस हैज़ नॉट येट picked up to this speed. आप ईयर ऑन ईयर करो, आपको वो ग्रोथ मिल जाएगी. 23 विल बी कंपेयर्ड विद 16, देयर वुड बी सम ग्रोथ. बट जहाँ पर आपको ये चीज़ आने लगेगी, राइट, योर स्टॉक प्राइस विल सडनली स्टार्ट मूविंग अप. योर स्टॉक प्राइस विल सडनली स्टार्ट मूविंग अप, राइट. अनदर वे टू कैच दिस इज गो टू द BSE का वेबसाइट. और हाउ डू यू फिल्टर आउट, आपको पता है कौन सी कंपनी में कैपेक्स हो रहा है, स्क्रीनर आपने लगा लिया है, सब कुछ कर लिया है. Now go to this Nahar Poly. I am coming from the reverse side कि मेरे को पता है कि कैपेक्स हो रहा है, और आई एम गोइंग टू कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स. कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में ये सारे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आ गए. अभी क्या होता है कि कभी भी कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो यहाँ पर एक नोटिस आ जाता है कि BSE विल आस्क फॉर सम क्लैरिफिकेशंस, एंड नाउ आई हैव टू हंट फॉर दैट. BSE, the exchange will ask for some clarifications from the company कि why suddenly your stock price has been running like anything. So ये जो है stock price, this was October of 20. So let's go to 2020 and September से चलते हैं and let's go to 2020. नवंबर में आ जाता है. हमारे को यहाँ पर क्या देखना है, क्लैरिफिकेशन. सी, क्लैरिफिकेशन सॉट बाय फ्रॉम नाहर पॉली, ऐसी आपको एक अपडेट मिलेगा. द एक्सचेंज हैज ऑफ विद रेफरेंस टू सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द प्राइस, राइट, इन ऑर्डर टू इंश्योर द, ये सेबी के और एक्सचेंजेस के ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं. जब भी कोई स्टॉक प्राइस ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये फिल्टर ट्रिगर हो जाएगा, एंड द एक्सचेंज विल आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. आप मे बी आफ्टर 1 or 2 days द कंपनी विल कम अप विद द क्लैरिफिकेशन कि देयर इज़ नो मीनिंगफुल इवेंट विच हैज़ हैपेंड, एंड देयर इज़ नो सच पर्सन हु हैज़ डेल्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी. कोई रिलेटिव ने नहीं लिया है और हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. So this is the thing which should trigger your eyes कि something is happening, and that something what is happening. Now this clarification which is coming over here, which is in the month of October. So कोई मुझे बताएगा कि अक्टूबर में कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं? अक्टूबर का महीना जो होता है, अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है. हाँ, सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट कब आएगा? सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट कब आएगा? ये रिजल्ट यहाँ आया 39/2020. रिजल्ट कब आया मेरा? 10 नवंबर को, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 12 days बिफोर दैट, मोटा मोटा
there is no fixed formula over here. I am talking 12 days before that. 30/9/2020, the third quarter. What is my top line growth? 4%. पहले 19% आया. What is my top line growth? 4%. What is my bottom line growth? Please divide 18 by 11 and calculate the percentage quickly. कोई करेगा? 18 डिवाइड बाई 11. 60%. मोटा मोटा मैं कोई फिक्स फिगर में जाना, मोटा मोटा 60% ना. नाउ माई एंड सेल्स इज 4%. 12 दिन पहले मेरे को यहाँ आता है कि रिजल्ट के 10, 12, 15, 20 दिन पहले कि देर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द प्राइस एंड एक्सचेंज वांट सम क्लैरिफिकेशन, राइट. एंड आई एम गेटिंग 60% प्रॉफिट इन द अपकमिंग क्वार्टर जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है. उसके पहले व्हेन माय सेल्स इज 19% विच इज़ अ गुड टर्न अराउंड. -20 था, -7 था, इसका 19% आया. सो 16 अगेन डिवाइड बाई 11, आपको कितना परसेंट मिलता है इधर? So bottom line growth is equal to the top line growth. Some machinery or some capex which has been done over here, ये पूरा complete नहीं हुआ है. कुछ part of the capex which has started and this इसके साथ you can go and check the TTM ROC which is in the quarterly sheet. यहाँ पर you are getting a turnaround in the numbers, right? This turnaround in the numbers in spite with a positive growth in the sales. आपका कैपेक्स कहीं ना कहीं मशीनरी को स्टार्ट कर चुका है, एड करना शुरू हो चुका है. दिस इज़ द टाइम, अगर आपको लग रहा है कि आई एम नॉट टू श्योर अबाउट माई इन्वेस्टमेंट, मैं इसको यहाँ से 2 साल 3 साल के लिए अभी नहीं रखना चाहता, आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट अपॉन द बिजनेस, हियर यू कैन गो ऑन योर चार्ट. दिस इज़ द चार्ट. दिस इज़ द मंथ ऑफ सितंबर 2020. ये रहा सितंबर 2020. और ये टेंटेटिवली क्या डेट है जब ये रिज़ल्ट आया है? टेंटेटिवली क्या डेट है जब ये रिज़ल्ट आया है वो देखो. लेट मी सी, एक मिनट. सितंबर का आपका रिज़ल्ट कब आया है? मोटा मोटा एक मिनट, नवंबर में आया ना. सो हमको पता कब चलेगा? ये नवंबर में. सो ये और ये आपका वेटिंग पीरियड है. दिस इज़ द पीरियड where you should start looking at your chart and here comes your breakout. मैंने सिर्फ ये हाई पॉइंट लिया and here comes my breakout. It breaks out, retest and starts. So you can have more allocation to the same company where you can have some dedicated portion as a core portfolio, some dedicated portion as your satellite portfolio which you can sell in maybe 30, 40, 50%, जो भी आपको अच्छा लगता है, generating some alpha for yourself. Right? So we have 3 things. One is a capex, staggered capex है या lump sum capex है. Secondly, we have the reverting of the ROE and ROCs. Thirdly, I don't want to risk in देखो यहाँ भी ग्रोथ है. 12 करोड़ का प्रॉफिट है क्वार्टरली विच इज़ ऑन 8 करोड़ विच इज़ सम ग्रोथ, बट आई डोंट वांट टू गो ऑन अ नेगेटिव सेल्स ग्रोथ. आई एम वेटिंग फॉर सम पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ विथ क्यूमुलेटिव 2 क्वार्टर्स ऑफ ग्रोथ जो मुझे यहाँ मिल रहा है. एंड द एक्सचेंज के फिल्टर्स विच आर रनिंग एंड दे आर कैचिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि द प्राइस इज स्टार्टेड मूविंग सिग्निफिकेंटली. नो अब मेरे को मैं ये तो नहीं कहता कि आप यहाँ जाके उसको पकड़ लोगे विद सम फंडामेंटल्स. आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन फॉर दिस, बट आई माइट नॉट बी एबल टू बाय ओवर हियर at 70 rupees or 80 rupees. I might be able to buy over here maybe at $110. And in this $110 I can just see there is no indicator on my chart. कोई मैं वॉल्यूम भी नहीं देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ. आई एम जस्ट पुटिंग माई विल स्टॉप लाइन. अगर if this is a momentum trade और if this is a satellite position for me जो मैं कैपेक्स
स्टार्ट हो रहा है उसके एक अजम्पशन से कर रहा हूँ. सो इफ़ माई एंट्री पॉइंट इज़ हियर, माई एग्जिट पॉइंट इज़ हियर, which is a return of 84% in this case in 21 weeks. I'll give you my disclosure. My buying of this company was here, which is pretty obvious. ये will stop का भी entry है और ये breakout भी है. My buying was somewhere around here, which is around 320 rupees. Now, is this a satellite position for me? No, this is the core position for me. What am I banking upon? I am banking upon the increase of the BOPP films in the country. और इसके अंदर टेलविंड्स हैं. 30,000 की कैपेसिटी से वो 60,000 जा रहा है, जो उसका टोटल खर्चा 300 उसने करा है. राइट नाउ स्लोली ही हैज़ सो गुड पावरफुल कैश फ्लोज विद हिम विच ही विल बी एबल टू पे डाउन हिज डेट वेरी क्विकली. Right? Hello. Sir, just I need to ask one question. Yes, please. Sir, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि they have investment of around 600 crores. No, see, this investment can be in the subsidiaries also, ना. वो तो मैंने आपको नहीं बोला कि वो इन्वेस्टमेंट किस में है. कोटेड शेयर भी हो सकता है, सब्सिडरी भी हो सकता है, अनकोटेड स्टॉक भी हो सकता है, विच वी नीड टू गो एंड चेक इन द एनुअल रिपोर्ट. Actually, if it is not in subsidiaries, then तो you have a question ना. Then तो you have a question. Even see, then तो you have a question from last so many weeks, so many months. चलो मैं कोविड फॉल से देखता हूँ. Just give me 1 second. I am looking at the lows of COVID till the price of now. The stock is up by 2,400%, right? In a matter of 105 weeks. हमने पूरा मिस कर दिया. हमको नहीं पता था इसके बारे में, हमने पूरा मिस कर दिया. Forget about it. Let's go to the annual report and let's go to balance sheet, page number 84. ये आपका आ गया पेज नंबर 50. ये स्टैंड अलोन है. 75 पेज नंबर कहाँ गया? 84 में आएगा. 82, 80. आपके पास 600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं. आई हैव फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 36630 lakhs. दिस इज़ नंबर 1. एंड आई हैव दिस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मेरा चल ही रहा है. वेयर डू आई फाइंड मोर इन्वेस्टमेंट्स? आई थिंक कोई डेटा क्लबिंग है. ओके, लेट्स गो एंड लुक एट दिस नंबर 2.1. other financial assets also. These are just 22 crores. This is 366 crores. Why? Now see this. My March balance sheet is giving me 366 crores of investments. My September का balance sheet is giving me 612 crores. तो अब हम मार्च का एनुअल रिपोर्ट खोल रहे हैं, तो इसमें सितंबर का नंबर आएगा नहीं. सो नंबर 2.1 विच इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम 279 करोड़. परसेंटेज आप निकाल सकते हो क्या परसेंटेज से वो इंक्रीज कर रहा है. इफ़ यू वांट टू नो व्हाट आर दीज इन्वेस्टमेंट्स, वी कैन गो टू नोट नंबर 2.1 है शायद. 2. दीज आर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एट कॉस्ट. ठीक है. दिस इज़ 280 करोड़ का नाहर कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. नाहर स्पिनिंग मिल्स, यानी कि दिस इज़ अ कंग्लोमरेट हैविंग लॉट्स ऑफ कंपनीज. नाउ वन थिंग, it is these many number of shares. Now my heirs should be standing up. Nahar Spinning Mills. Wow, the company is listed. I can go and look at the shareholding pattern, and 66% is by the promoters. ये सारे प्रमोटर आ गए इसमें. नाहर कैपिटल इज सी वेरी इंटरेस्टिंग. नाहर कैपिटल इज द प्रमोटर ऑफ नाहर स्पिनिंग मिल्स. नाहर पॉली इज द प्रमोटर ऑफ नाहर स्पिनिंग मिल्स, राइट. तो नाहर स्पिनिंग मिल्स का मार्केट कैप कितना है? 1875 करोड़. सो नाहर, हम सिंपल स्ट्रक्चर में चलते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. कितना परसेंट होल्ड करता है ये? 19.14%. सो 19.1875 द टोटल मार्केट कैप इंटू 19.14%.
मोटा मोटा 360 करोड़ का वैल्यू होता है इसका, राइट? मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ? अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताना, यस और नो? मैंने सिर्फ 19.14% को जो ये स्टॉक होल्ड करता है नाहर स्पिनिंग के अंदर, उसका मैंने इसमें 1875 करोड़ का 19.14% कर लिया। मोटा मोटा मेरा आंसर आया 358 360 करोड़, मोटा मोटा। मैं कोई फिक्स नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, ओके? यस? So I तो find myself 100% wrong. Let's do this value half. तो 360 करोड़ को मैं आधा कर लेता हूँ. Let's be very 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 conservative. हमने इस वैल्यू को आधा कर दिया. भाई गलती हो सकती है, हम लोग एक कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. We can do a mistake. So 360 divided by 2 is 180 crores. So please write कि नाहर स्पिनिंग मिल्स के अंदर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है नाहर पॉली का, उसका मोटा मोटा 180 करोड़ से 200 करोड़ की मेरी टेंटेटिव वैल्यू आती है. नेक्स्ट गो एंड सी विच इज़ द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट विच दिस कंपनी हैज़, विच इज़ नाहर कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज. क्या ये कंपनी लिस्टेड है? इसका काम हो गया. नाहर कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर मार्केट कैप कितना है? 1010 करोड़ शेयर होल्डिंग कैपिटल. एंड लेट्स गो टू द प्रमोटर होल्डिंग कंपनी नाहर पॉली. नाहर पॉली मोटा मोटा ओन्स 40% ऑफ 1010 करोड़. 1010 करोड़ को आप 40% से 40 से मल्टीप्लाई करो, 1010 इंटू 0.4, 400 करोड़ हो गया, राइट? नो फिक्स फिगर्स, नो टू द पॉइंट कैलकुलेशन, मोटा मोटा कैलकुलेशन. यस और नो? 2.25. 2.25 400 करोड़ हो गया ना, वही तो बोल रहा हूँ, 400 करोड़ हो गया. चलो मान लो हमारा ये भी गलत है, इसको भी आधा कर दो, तो 200 करोड़ की मेरी वैल्यू आती है नाहर कैपिटल से, 200 करोड़ की मेरी वैल्यू आती है नाहर स्पिनिंग मिल से. एग्रीड? मैंने अपनी कैलकुलेशन को बिल्कुल 50% कर दिया. जस्ट बिकॉज प्राइस टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू डू माई कैलकुलेशन इनटू 50%. 200 करोड़ की वैल्यू नाहर स्पिनिंग से आ गई, 200 करोड़ की वैल्यू मेरी नाहर कैपिटल से आ गई, 400. अभी एक चीज़ और है, जो हमने नाहर स्पिनिंग मिल्स देखा था, ये रहा, राइट? इसका हमने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा था. Now one more thing, Nahar Poly is the promoter of Nahar Capital and also the promoter of Nahar Spinning, and Nahar Capital is also the promoter of Nahar Spinning, which is to the tune of 45%. मैं पॉइंट्स को छोड़ रहा हूँ, 45%. तो यहाँ पर मेरा मार्केट कैप कितना है? 1875. Now 0.45 into 1875 gives me a value of मोटा मोटा 840-850 crores. I go to this. Now I go to Nahar, ये वाला, एक मिनट. Now I go to, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको, बाद में समझ जाएगा. Now I go to नाहर कैपिटल कि नाहर पॉली का इसमें कितना होल्डिंग है, और नाहर कैपिटल का नाहर स्पिनिंग में 840 करोड़ का होल्डिंग आ रहा है. भाई मेरे को तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना. अब मैं जाता हूँ इसमें नाहर कैपिटल में. नाहर कैपिटल का शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर नाहर स्पिनिंग का कितना स्टेक है? मोटा मोटा 3%. सो 840 इंटू पॉइंट से मोटा मोटा 4%, मे बी अराउंड 50-60 करोड़. सो 500 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन यहाँ से निकलती है. सो टेंटेटिवली विच दिस 600 करोड़ वैल्यूएशन विच इज़ गिविंग ओवर ईयर, ये तो सितंबर का है, यहाँ 366 करोड़ के सामने मेरी 500 करोड़ की वैल्यूएशन निकलती है. और आज की तारीख में ये सितंबर की तारीख में ये 600 से 500 करोड़ की वैल्यूएशन सही है. दिस इज़ एट बुक वैल्यू. वो भी तब जब मैं अपनी कैलकुलेशन को आधा कर रहा हूँ. अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूँ सो दिस वैल्यू गोज अप टू अराउंड 800-900 करोड़. अभी आपको जब मार्च की बैलेंस शीट निकलेगी, ये नंबर आपको 800 करोड़ के आसपास दिखेगा. अभी अगर मैं पूरी कैलकुलेशन में जाऊँ, 1400 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन है कंपनी की, इसमें से 600-700 करोड़ की तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं. तो कितने की कंपनी बची टोटल? आधी, राइट? 700 करोड़ की कंपनी में अगर
मैं 250 करोड़ का कैपेक्स कर रहा हूँ एंड आई हैव अ प्लांट ऑफ 228 करोड़, मोटा मोटा दिस विल कंप्लीट टू अराउंड 280 to 300 करोड़, मोटा मोटा, नो फिक्स कैलकुलेशन, एंड माई एसेट टर्न्स आर 8 to 9 times. सो 250 to 300 करोड़, मेक इट 280 करोड़ और मे बी 250 करोड़, इसको भूल जाओ, ये भी डेप्रिशिएट हो गया. 250 करोड़ इंटू 8 times, आई गेट अ सेल्स ऑफ 2000 करोड़ ओवर ईयर, विच इज़ 5x फ्रॉम द करंट नंबर्स. व्हाट इज़ अ मार्जिन? मैं तो चलो ये अभी धंधा चल गया, ये इसको भी छोड़ो, इसको भी चलो, ये 300 करोड़ की सेल पे 37 करोड़ का मार्जिन है. कितना मार्जिन है? 37 डिवाइड बाई 277, मोटा मोटा 12-13% का मार्जिन है. चलो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट कॉस्ट लग जाएगा, आपने डेप ले लिया, इसमें आपको इंटरेस्ट लग जाएगा. 13% का मार्जिन आपका 10% रह जाएगा. सेल कितनी बनती है आपकी? 2000. प्रॉफिट कितना बनता है आपका? 200 करोड़. पर एक चीज़ हम देख चुके हैं, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दिस डज नॉट हैपन. बॉटम लाइन रन्स मच मोर फास्टर. अगर ये 200-250 करोड़ का मेरा पैट होता है और ये 2000 करोड़ की मेरी सेल होती है, मेरी मार्केट कैप क्या बन जानी चाहिए? अगर मैं आज की वैल्यूएशन देखता हूँ, फ्रॉम अ सेल्स ऑफ 400 करोड़ आई एम गेटिंग अ वैल्यूएशन ऑफ 1400 करोड़. प्राइस टू सेल्स इज मोटा मोटा व्हाट? 3 times. ओके, इफ आई गिव इट जस्ट 2 times, मे बी 1.5 times, तो ये मेरा 1400 करोड़ की कंपनी सीधा जाती है 3000 करोड़ 3500 करोड़ पे. और वो तब जब स्टॉक आपका 2400% चल चुका है. बहुत बढ़ गया है स्टॉक यार, मैं तो नहीं खरीद सकता. वैल्यू इन्वेस्टिंग समझ में नहीं आती, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है जब स्टॉक मेरा 2400% चल चुका है. व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग? आई कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन ओवर ईयर. आई कैन हैव multiple levels of investment. Some would be for alpha generation and some would be for the core portfolio. And that too, when this information I am picking up from the balance sheet and I have done my calculations divide by 2, 50%. 100% आप देखना इस चीज़ को, मार्च आते आते ये बैलेंस शीट में ये फिगर आपका 800 करोड़ के आसपास आपको दिखेगा, प्लस माइनस 5, 10, 15 करोड़, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता. 800 करोड़ के आसपास आपको ये इन्वेस्टमेंट दिखेगा. अदर वे अराउंड, इफ़ यू आर अ नंबर्स पर्सन, सी दिस. व्हाट इज़ माई इक्विटी? 764. व्हाट इज़ माई शेयर कैपिटल? 13. तो मेरा बुक वैल्यू कितना बना? 764 प्लस 13 कितना हो गया? 777 करोड़. सब्ट्रैक्ट द एसेट्स, ये इन्वेस्टमेंट्स 612. तो खुद का पैसा कितना लगा हुआ है? जस्ट 165. और बैंक का पैसा कितना लगा हुआ है? 157. मोटा मोटा 300. और ये कर क्या रहे हैं भाई साहब? 300 करोड़ का कैपेक्स है. तो इसका मतलब आज तक जो जितना भी धंधा करा, खुद का पैसा कुछ लगा ही नहीं. जब खुद का पैसा कुछ नहीं लगा, डिनोमिनेटर इज नथिंग, न्यूमरेटर इज ओनली गोइंग अप, व्हाट विल हैपन? बाय नाउ यू शुड ऑल बी एबल टू वेरी क्लियरली डू दैट. ROC will start increasing, which has already started increasing. And not to be surprised, promoter holds the max stock. Not to be surprised. Why these FIIs and DIIs are not here? Because the market cap is very small, and for their size of this company, of this market cap, does not make any sense. बाकी जो डिविडेंड आ रहा है वो अलग है. और आज मैंने ये इसकी बात करी, 3-3.5% टाइम्स का प्राइस टू सेल्स है. 2000 करोड़ की सेल बनती है आपकी नहीं करते हुए भी. और ROE ROC आपने देख ली, इस पर भी नज़र डाल लो. ठीक है, दिस इज व्हाट इज द एक्सटेंशन टू द कैपेक्स सेशन. एंड अगेन हैव अ लुक एट दिस. 2400% बढ़ चुका है स्टॉक कोविड फॉल से. क्या मुझे यहाँ पता था? नहीं. क्या मुझे यहाँ पता था? नहीं. क्या मैं यहाँ इसको सेंस कर सकता था? शायद हाँ. अगर मैं 24% नहीं ले सकता और यहाँ इस कोविड के फॉल से जब डर का माहौल था, यहाँ से लेके यहाँ तक भी स्टॉक 3.5 टाइम्स 3.5x हो चुका था. 3.5x होने के बावजूद भी, इफ़ दिस इन्वेस्टमेंट मेड सेंस टू मी एंड आई वॉज
मे बी अ ट्रेड और मे बी इन्वेस्टमेंट, इस could have again gone up by 5 times. मल्टीबैगर सबको चाहिए, मल्टीबैगर पहले दिन किसी को नहीं पता होता है, इट टेक्स टाइम.